ہندوستان میں مائنر لڑکیوں کے ساتھ ریپ کے وارداتوں میں آئے دن اضافہ ہوتے جا رہا ہے۔ اسی کے چلتے سیاست بھی گرما گرمی پکڑ رہی ہے۔ ہم آپ کو بتا دیں کہ اسدالدین اویسی کا بیان آیا تھا یوپی ریپ مرڈر کیس کو لے کر، اس کے بعد حیدرآباد کی سیاست میں گرما گرمی ہوئی۔ حیدرآباد کے سیاستدان یہ کہنے لگے کہ اسدالدین اویسی نے معین آباد ریپ کیس پر کچھ نہیں کہا، پر حیدرآباد کے باہری اسٹیٹ یعنی تلنگانہ کے باہری اسٹیٹ اتر پردیش ریپ کیس کے بارے میں بولنے کو اسدالدین اویسی کا منہ ضرور کھلا ہے۔ کانگریس قائد خواجہ بلال نے اس کے اوپر ناراضگی جتاتے ہوئے کہا کہ ہوم منسٹر محمود علی سی ایم KCR کی جوتیاں چاٹ رہے ہیں تو دوسری طرف اسدالدین اویسی اس طریقے کا بیان دے رہے ہیں۔ کافی چبھتا ہوا بیان آیا ہے خواجہ بلال احمد کی طرف سے۔ اب دیکھنے والی بات ہوگی کہ یہ بیان کے وائرل ہونے کے بعد کس طریقے کی گرما گرمی پکڑے گی شہر حیدرآباد کے اندر سیاست، کیونکہ آنے والے کچھ ہی مہینوں میں ہونے والا ہے تلنگانہ کے اندر میونسپل الیکشن۔ سلطان صلاح الدین اویسی صاحب 6 مرتبہ MP تھے، 6 مرتبہ حیدرآباد پارلیمنٹری جو کانسٹیٹنسی ہے وہ چویلڑا، ٹانڈور، معین آباد کے قریب تک وہ حلقہ حیدرآباد پارلیمنٹری کانسٹیٹنسی میں آتا تھا۔ بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب 4 مرتبہ MP تھے اور 1 مرتبہ جب پہلی مرتبہ جب MP تھے تب یہ جہاں پر ریپ ہوا یہ حلقہ بھی بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب کو آتا تھا۔ یعنی وہاں کی عوام مجلس اتحاد المسلمین کو 40 سال تک اپنے ووٹوں کو نوازتی رہی، لیکن ان کو وہاں تک جانا یاد نہیں آیا۔ ان کو یاد بہار آتا، بہار ان کے لیے قریب ہے، اتر پردیش ان کے لیے قریب ہے، مہاراشٹر ان کے لیے قریب ہے، تمل ناڈو، کرناٹک وغیرہ سب چیزیں ان کے لیے قریب ہے، دلی ان کے لیے قریب ہے، لیکن آپ کے مکان سے 10 کلومیٹر جانا آپ سے ہاتھ نہیں ہوتا۔ حیدرآباد کی عوام آپ سے سوال کرے گی۔ یقیناً آپ یاد رکھیے ہر معاملے کے اندر آپ خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ آپ کا TRS سے الائنس ہے۔ آپ CA NRC پر خاموشی اختیار کریں، لاک ڈاؤن پر پولیس کے ظلم پر آپ خاموشی اختیار کریں، آپ کووڈ پر جب راشن کی نان اویلیبلٹی تھی حیدرآباد کے اندر تب آپ خاموشی اختیار کریں۔ آج مسجد کی شہادت کے حیدرآباد کے 62 دن کے احتجاج کے بعد آپ کو یاد آیا، تب جا کے آپ چیف منسٹر کے پاس ملاقات کریں۔ اس کے بعد چیف منسٹر ایک اسمبلی سیشن آتا تب مجلس اتحاد المسلمین کے رکن اسمبلی اٹھ کے وہاں پہ بولتے ہیں۔ 3 مہینے کے بعد آپ کو سب کچھ یاد آتا، 62 دن کے بعد آپ کو چیف منسٹر سے ملاقات یاد آتی۔ آج بھائی میرا ایک سوال کا جواب دے دو بھائی، آپ معین آباد کے مرحوم کے گھر تک کوئی مجلس اتحاد المسلمین کا MLA MP وہاں پر کیوں نہیں گیا؟ ارے وہ ڈرامہ کرنے کے لیے کسی کو بھیجا دیے۔ اب اگر میں اس کے بارے میں کچھ بولوں تو لوگ برا مان جائیں گے۔ وہ بیچارہ اتنا دیوانہ پاگل ہے، اس کو کچھ بھی نہیں معلوم، اس کو بھیجا ڈالے، اس کو معلوم ہی نہیں ہے۔ منگل ہاٹ میں ایک ٹوائلٹ قبرستان کے اندر ٹوائلٹ کی تعمیری ہو رہی، وہاں جا کے احتجاج کرنے کا وقت پہ احتجاج کرتا۔ اتنا بڑا بیوقوف ہے، وہ بیوقوف کو بھیجا دیا، وہ بیوقوف جا کے کیا کرے گا؟ پہلے دن گاندھی عثمانیہ ہاسپٹل میں ٹھہر کے بیان دیا، دے کے بولا نربھیا بک کر دیے، یہ کر دیے، وہ کر دیے، پورا حیدرآباد پورا تلنگانہ گواہ ہے۔ کل DCP کا بیان آیا، کل DCP صاحب کا بیان آیا کہ کیسز بک کرے۔ خیر کیسز کے بارے میں بھی یقیناً میں بولوں گا، کیونکہ ابھی تو اس کی FIR کی کاپی وغیرہ کچھ لوگوں کے درمیان میں ایک کاپی آئی ہے، دوسری کاپی آئے گی، اس کے بعد اس کے اوپر بولا جائے گا۔ لیکن گورنمنٹ کی ہاسپٹلز کی نان اویلیبلٹی پر آپ کی خاموشی، آپ ہر مسئلے پر خاموشی اختیار کر رہے ہیں۔ ارے بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب آخر کتنا کیوں ڈر رہے ہیں؟ میں میری قیادت کو، میری مسلم قوم کے رہنما کو کبھی اتنا ڈرتا ہوا نہیں دیکھا۔ آپ TRS کے ساتھ الائنس میں، کانگریس کے ساتھ بھی آپ الائنس میں تھے، لیکن ایسی آپ کی خاموشی نہیں تھی۔ آپ چندرا بابو نائیڈو کے ساتھ بھی جو ہے الائنس انجوائے کرے، آپ ان کا ساتھ بھی مکمل دیے، لیکن آپ کی ایسی خاموشی نہیں تھی۔ آخر KTR ایسی کون سی ان کی رگ پہ ہاتھ رکھ دیا؟ وہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ آج آپ ایک دم خاموش بیٹھے۔ آخر میں تو اتنا کہتا ہوں کہ شرم، بے شرم، اتنے بڑے شرم ہے کہ بے شرم شرم بھی ان سے شرم آتی ہے۔ آج خاموشی سے اختیار بیٹھے تو ٹویٹر پہ ٹویٹ کر دیے۔ کس کے بارے میں ٹویٹ کرے؟ آپ کو اتر پردیش کی میرٹھ کے اندر ایک دلت بچی کا ریپ ہوتا ہے تو آپ کا ٹویٹر ہینڈل شروع ہو جاتا۔ آپ کے گھر سے 10 کلومیٹر پر ایک مسلم بہن کا ہمارے ریپ ہو گیا، مرڈر ہو گیا،
पुलिस की कोशिश थी कि उसको सुसाइड में कन्वर्ट करे, सुसाइड में 306 का एफआईआर डाल के जो है उसका पंचनामा करने की कोशिश करे। मैं सलाम करता हूं तेलंगाना के अजलाओं के मुसलमानों को, मोइनाबाद के मुसलमान को, आदिलाबाद के मुसलमान को, निर्मल के मुसलमान को, करीमनगर के मुसलमान को, महबूब नगर के मुसलमानों को। आज सोशल मीडिया के अंदर 4-4 बच्चे ठहर के भी एहतजाज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो देख रहे हैं। अब देखिए तासुबियत वाला मामला देखो आप कितनी यानी शिद्दत से। मैं पूछना चाहता हूं, मेरी बात को गलत ना समझे, क्या वो बच्ची मुसलमान है? इस वास्ते कोई भी एक टीआरएस का लीडर वहां पर नहीं गया। क्यों नहीं गया? जब प्रियंका रेड्डी का दिशा का जब एक माह से कुछ दिन पहले एक रेप हुआ था, बच्ची का मर्डर हुआ था, गवर्नर पहुंच गया, इंदिरा सविता रेड्डी साहब पहुंच गए, मोहतरमा पहुंच गए थे, गवर्नर साहब पहुंच गए थे, महमूद अली साहब होम मिनिस्टर पहुंच गए थे, पूरे एमएलएस की, टीआरएस के एमएलए मिनिस्टर्स की गाड़ियों की लाइन लग गई थी। ये बच्ची गरीब है, घर में काम करने वाली बच्ची है, मुसलमान बच्ची है, इस वास्ते कोई पलट के नहीं पूछा। हमको किसी से तवक्को नहीं है, हमारी क़यादत से हम तवक्को रखते हैं। हम सवाल करते हैं हमारी क़यादत से कि हमारी क़यादत आखिर खामोशी का वजह बताइए, क्या वजह है कि हमारी क़यादत खामोश बैठी हुई है? वो एक चिचोरों को छोड़ देने से नहीं होता, उन्हें कोई जीता हुआ एमएलए नहीं है। आप जीते हुए एमएलए को छुपा के बगलों में क्यों बैठे? छोड़ो जीते हुए एमएलए को रोडों पर जाओ, बोलो उनको एहतजाज करो, बोलो पब्लिक के साथ बैठो, बोलो सड़कें जाम करो, बोलो सीपी से मुलाकात करो, बोलो कैपिटल पनिशमेंट का एहतजाज करो, बोलो कैपिटल पनिशमेंट का डिमांड करो, बोलो। क्योंकि एक ऐसा वाकया हमारी मुस्लिम बहन के साथ हैदराबाद में हो गया। हैदराबाद में कह रहा हूं मैं, इसको मोइनाबाद नहीं कहता। वालिद मोहतरम आपके वहां से 6 मरतबा एमपी थे, असदुद्दीन अवैसी साहब, आप भी 1 मरतबा वहां से ही वही हल्कों के वोट लेके आप एमपी बने। आप देखिएगा, याद रखिए इस बात को। आज जीएचएमसी के इलेक्शन आ रहे हैं तो आवाम इस बातों को याद रखेगी। मस्जिद की शहादत पर आपकी खामोशी याद रखी जाएगी, आपकी खामोशी हमारी बहन की रेप पर, आपकी रेप और कत्ल पर आपकी खामोशी को हैदराबाद याद रखेगा। सीए और एनआरसी पर आपकी खामोशी शहर हैदराबाद की आवाम याद रखेगी। आप इसको नजरअंदाज मत करिए। आज लोगों के अंदर दिलों में गुस्सा, जोश और जज्बा भरा हुआ है। उस जोश से जज्बे को मैं कहता हूं कि मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को इस वक्त फौरी जरूरत है कि सड़कों पर उतरे, वहां पर एहतजाज करे, कैपिटल पनिशमेंट की डिमांड करे। अरे क्या सेक्शन डाल के छोड़े, कितना भी कर लो, 2 महीने के अंदर बेल पे बाहर आ जाएगा वो। एक बड़ा सा बड़ा वकील उन्हें खड़ा कर सकता, उन्हें कोई फकीर नहीं है। हमारी बच्ची गरीब है, हमारी बच्ची घरों में काम करने के लिए मजबूर है। मैं पूछना चाहता हूं कि बच्ची अगर आज घर में काम कर रही तो उसकी वजह और उसके जिम्मेदार कौन है? ऐसे कितने बच्चियां हैं हमारे शहर हैदराबाद के अंदर जो किसी के घरों में नौकरों के जैसा काम कर रहे हैं, गैरों अखियार के घरों में काम करने पर मजबूर हो गए। इसके जिम्मेदार कौन है? आपके वालिद मोहतरम 6 मरतबा वहां से एमपी थे। ये बच्ची आज जहां रेप हुआ, जहां सुसाइड हुआ, जहां मर्डर हुआ, जहां पर इस बच्ची को लटकाया गया, 6 मरतबा आपके वालिद मोहतरम वहां से एमपी थे। लेकिन आपने कभी नहीं पूछा, पलट के नहीं पूछते। प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर खाली लफ्ज ब लफ्ज कहते कहते बस नाम लेके चले जाते हैं। बड़ी शर्म आती है जब आपके बयाना सुनते हैं तो दिल को तकलीफ होती है कि हमारी क़यादत खामोश क्यों बैठी है। मैं आखिर में और एक बात कहना चाहता हूं। लोग मेरी बात को गलत समझते होंगे शायद, लेकिन समझे मुझे किसी की परवाह नहीं है। मैं मुतालबा करता हूं कांग्रेस के तमाम मुस्लिम लीडरों से, मैं मुतालबा करता हूं कि आपको अल्लाह ताला ने मिनिस्टर बनाया, आपको माइनॉरिटी चेयरमैन बनाया। आप बैठ के खामोश बयान मत दो, आप जाओ। करोड़ों रुपयों से अल्लाह ताला ने आपको नवाजा। आप 5-5 बार, 4-4 बार एमएलए बने, 3-3 बार मिनिस्टर बने। जाइए उस बच्ची के घर पर 25 से 50 लाख रुपए जाती मिल्कियत से आप ऐलान करिए वहां पर। मेरा इशारा काफी है, मेरी बात को समझो। माइनॉरिटी चेयरमैन को भी मैं कहना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी माइनॉरिटी चेयरमैन को भी मैं कहना चाहता हूं कि चेयरमैन साहब खामोश बैठने से नहीं होता। कठुआ में आसिफा का जब रेप हुआ था तो जम्मू एंड कश्मीर का हमारा माइनॉरिटी का चेयरमैन सबसे ज्यादा एहतजाज में शामिल था। आप खामोश बैठे हुए चेयरमैन साहब, आप निकलिए सड़क पे। आप माइनॉरिटी कांग्रेस पार्टी की तरफ से आप एक मेमोरेंडम जाके आप कलेक्टर को दीजिए, एक मेमोरेंडम माइनॉरिटी कांग्रेस पार्टी की तरफ से आप जाके सीपी को दीजिए, और तेलंगाना के तमाम माइनॉरिटी जितने यूनिट्स है,
तमाम यूनिट को आप कांग्रेस पार्टी की तरफ से लेटर जारी करिए और प्रोटेस्ट कंटिन्यू करने का आप एहतजाज करिए, आप उसका डिमांड करिए। अल्लाह ने आपको बड़े पोस्ट से नवाजा, खामोश बैठने से नहीं होगा। देखिए ये मसला कोई पार्टी का नहीं है, ये मसला कोई जो है सियासी मसला नहीं है, लेकिन ये मसले पर हमारी एक बहन जो जलील और रुस्वा हुई, उसके साथ कई चीजों का मोनोपोलाइज किया गया, केस को दबाने की कोशिशें की गई। मैं मुबारकबादी देता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं, मुश्ताक मलिक साहब का शुक्रिया अदा करता हूं, अमजदुल्लाह खान खालिद का शुक्रिया अदा करता हूं कि बहुत अच्छे पैमाने पे आपने काम किया। मैं बहुत से चैनल्स हैं, मैं उनका नाम ले लूंगा, अगर नाम लिया तो लोग भी उनको गलत समझेंगे, लेकिन एक चैनल है, मैं उसको सलाम करता हूं, मैं उसको मुबारकबादी देता हूं कि सबसे पहले आप उस चैनल ने इस बच्ची की वीडियो को बनाकर अपने चैनल पे डाला था। उसके बाद कई बहरे गूंगों के मुंह में जबान आ गई और एहतजाज पे मजबूर किया। ये होती है ताकत। हम जाने के बाद, एहतजाज करने के बाद कई लोगों को सड़क पर उतरना पड़ा। आप भी करिए, पूरे तेलंगाना के अंदर प्रोटेस्ट कराइए। मेरी क़यादत से मैं रिक्वेस्ट करता हूं, मैं डिमांड करता हूं कि आप फौरी तौर पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक मुंतखब वक्त आप फौरन बच्ची के घर को भिजाइए, फिर वो बच्ची को लेके सीएम के पास जाइए, कलेक्टर के पास जाइए, मुलाकात करिए, बच्चे को एस्ग्रेशिया दिलाइए, बच्ची को गवर्नमेंट नौकरी दिलाइए, बच्ची को वहां पर डबल स्कीम के बेड के अंदर, रूम के अंदर उसको डबल बेडरूम का रूम दिलवाइए, घर दिलाइए। आप हुकूमत से मुतालबा करिए। अल्लाह ताला ने आपको नवाजा है, आप इख्तिदार में हैं, आप ताकत में हैं, आपका सीएम सुनता, हर सीएम आपकी चौखट चाटता। आप करिए। महमूद अली साहब के मुतालिक मैं कहना चाहूंगा कि बहुत से लोग महमूद अली साहब को कह रहे हैं कि महमूद अली साहब निकलो निकलो निकलो, मेरी बात को बुरा मत मानो। क्या महमूद अली को चंचलगुड़े की आवाम कामयाब करी? क्या महमूद अली को याकुबपुरे की आवाम कामयाब करी? क्या महमूद अली को चंद्रान गुट्टे की आवाम कामयाब करी? बिल्कुल नहीं करी। महमूद अली साहब तो होम मिनिस्टर बने हैं, तो चीफ मिनिस्टर केसीआर के जूतियों के तुफैल में वो होम मिनिस्टर बने हैं। वो जो उनका चीफ मिनिस्टर चाहेगा वो वही करेंगे, लेकिन असदुद्दीन अवैसी और उनके साथ एमएलए किसी की जूतियों की तुफैल नहीं, हैदराबाद की आवाम की जूतियों की तुफैल में आप एमपी बने, आप एमएलए बने, आपके कॉर्पोरेटर बने, तो आप आवाम के दर्द को समझो, आप उनको मुतालबा करो। आवाम उनसे मुतालबा करना चाहिए कि सड़कों पर उतरो, एहतजाज करो, सीएम के पास उस मेरी मासूम बहन को लेकर जाओ, मुतालबा करो, सीएम के सामने बिठाओ उस बच्ची को। जर्मनटन हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, आईसीयू, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गैनाकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मनटन ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।